right here I need to tick one of the external devices. External devices, beta, are those that are externally connected to your computer, which means that you have to connect them. They are not internally fitted. They are not an internal component of your computer. So for this question number one, our answer is going to be pen drive, because sound card is also added into your computer. This is a primary device. Motherboard and ROM is also added into your computer, which is a primary device. I have selected the B, which is the correct answer, which is a pen drive, which is attachable and detachable both. So question number two, it says that a computer uses both analog and digital data. Explain what is meant by these types of data, analog data. Now we need to discuss here two types of data. Like first is an analog data and second one is a digital data. So whenever there is an analog data, you need to write that analog data is continuous data that can have any value in a range. This is to be known as an analog data. Whereas if I'm going to discuss regarding digital data, so I can write here that digital data is discrete data that is in binary form. Now, you also need to understand this, that this question is for this question is for 1 mark. So whenever you have a question write like this, you need to write for 1 mark. Like you can see that this is a continuous data. Like for writing this, you will be rewarded 1 marks. And digital data is a discrete data. For writing this, you will be rewarded 1 mark. So you will get 1 out of 1, 1 out of 1. The other point that is right here, that is written right here, that can have any value in a range, or that is in binary form. This is another point. So you are actually going to get 2 marks out of that, but not right now, because it is for out of 1 marks. But what I'm just trying to teach you here is that for each mark you need to write each point. ये मैंने 2 पॉइंट्स के लिए लिखा है, लेकिन मैं यहां तक लिखता तो काफी था. और जहां तक बात रही टाइप्स ऑफ डेटा की, we need to understand that we have two different types of data. One example is an analog data and one example is a digital data. When it comes to an analog data, this means that your data is continuous in nature. Continuous in nature means that ये डेटा कभी भी नहीं रुकेगा, ये चलता रहेगा like 78.000000 and so on. But similarly, if it is a discrete data, that is an example of a digital one, that means that it is only going to be in two form. It is written here that it is in binary, which means only 1 or 0. So this is what when I am discussing you in terms of data is of two types. So for example, if you are working with a computer, and your computer has a keypad that shows you all of these numerical numbers. So that numerical numbers, first of all, they are shown to us in another language that is understandable to us. लेकिन जब वही डाटा कंप्यूटर के पास जाता है तो वो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होता है, क्योंकि आपके कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी डाटा समझ आता है. तो हमारे पास ये दो एग्जांपल्स हैं. अगर एनालॉग की बात होगी तो वो कंटिन्यूअस डाटा होगा, जिसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है रेंज की. लेकिन अगर डिजिटल डाटा की बात होगी तो डिजिटल डाटा आपके पास सिर्फ डिस्क्रीट डाटा में होता है या बाइनरी फॉर्म में होता है. जैसे कि let me show you some of the examples of it. If it is a continuous data, okay, so this is the one. Like I can explain you with these two charts, that on the left hand side you can see that this is a discrete data. Discrete data means जो आपके पास बाइनरी के अंदर है. लेकिन कंटिन्यूस जो है वो you can see that कि उसकी जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंटली चले जा रही है, कहीं पे भी रुक नहीं रही. राइट. सिमिलरली यहाँ पे एक और एग्जांपल है. बेटा कंटिन्यूस के अंदर क्या है, कोई भी वैल्यू आ सकती है जो कि मेजर्ड हो. लाइक 5.6 है, 2.4 है, 8.99 है, जैसे टेम्परेचर है.
लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक वैल्यूज की बात करूं जो कि डिस्क्रीट में आता है, जो कि बाइनरी में आता है, वो सिर्फ ये होगा कि आपके पास जितने नंबर ऑफ वैल्यूज है जिनको मैं काउंट कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास नंबर ऑफ सिबलिंग्स कितने हैं। नंबर ऑफ सिबलिंग्स कभी भी बेटा कंटिन्यूअस में नहीं आएंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस में ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मेरे पास 2.7778889 सिबलिंग्स है। दिस इज नॉट पॉसिबल। सो वेन एवर आई एम वर्किंग विद दिस टाइप ऑफ डेटा, दिस मीन्स कि मेरे पास सिर्फ डिस्क्रीट डेटा होगा। डिस्क्रीट डेटा मतलब ये कि मेरे पास जो है, मेरे नंबर ऑफ सिबलिंग्स 1 है, या मेरे नंबर ऑफ सिबलिंग्स जो है वो 2 है। राइट, लाइक दिस। इसमें कोई कंफ्यूजन? ओके, परफेक्ट। Now we will be discussing the B part of the question, and the B part of the question says that digital data is processed in a computer system. Sometimes digital data needs to be converted to analog data, right? Just that I was discussing right now, that the conversion goes on again and again, digital to analog, analog to digital. Explain why digital data may needs to be converted to analog data, why there is a need. So you can write here that it can be used to convert. Now you need to write here for 1 mark. So for 1 marks, you can write that it can be used to control an external device। ये आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया। लेकिन एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, इसका पेपर में नहीं लिखना, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि डिजिटल डेटा में नीड टू बी कन्वर्टेड टू एनालॉग बिकॉज इट नीड्स टू ऑपरेट एक्चुएटर्स और सेंड डेटा टू इट। आई होप दैट यू रिकग्नाइज के एक्चुएटर्स का क्या मतलब है, और शुड आई एक्सप्लेन देम? ओके, so this is the B part of that. Now C part says that using the most appropriate phrase from the list to complete the sentence, your answer must be different in each case. Okay. Now right here I am giving with some number of choices. I have an analog data, I have a digital data. ये भी कुछ choices मेरे पास available है। यहाँ पे लिखा हुआ है a monitor is used to। इन choices में से बताना है कि एक monitor क्या कर सकता है। Like I can say that a monitor is used to, oh, sorry, it's not a monitor, it's a motor. My bad. A motor is used to analog data, नहीं चलेगा। डिजिटल भी नहीं चलेगा। डिस्प्ले ग्राफ ऑन अ मॉनिटर भी नहीं चलेगा। इनपुट द मैक्सिमम सेफ वाटर फॉर अ लेवल, ये भी नहीं चलेगा। आई थिंक लास्ट वाला इसके ऊपर करेक्टली सेट होगा, दैट अ मोटर, अ मोटर इज यूज टू ओपन द विंडोज इन अ ग्रीन हाउस, क्योंकि मोटर की बात हो रही है ना, मोटर से हमेशा हम किसी भी फैसिलिटी को कंट्रोल करते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है अ डीएसी इनपुट, डायरेक्ट टू एन सॉरी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन आउटपुट्स। एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन आउटपुट क्या करेगा अगर वो डिजिटल से, यहाँ पे जैसे देखो तुम्हारे पास लिखा हुआ है DAC, तो बेटा यहाँ डी का मतलब क्या है? डिजिटल। यहाँ ए है, ए का मतलब क्या है? एनालॉग। और सी क्या का मतलब क्या है? कन्वर्टर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये पूरा जो है आपको आउटपुट क्या जनरेट करके देगा? व्हाट आउटपुट इज इट जनरेटिंग? So you need to write this के an output of a DAC is going to be an analog data, because you can see that the data is being converted from digital to analog. Whereas the third one is that a sensor is used to, and a sensor is used to measure acidity levels in a river. Measure acidity levels in a river. It is not going to like controlling the humidity
or inputting the maximum safe value, because that is going to be done by the others. A sensor is only going to measure or maintain. Now, question number 3 is that identify 3 different network communication devices and describe what each one does. And I think that we have discussed this into our classes as well. So have we discussed this or not? Can you name me any 3 devices which are used in our communication networks? Beta, can you name me 3 devices? देखो, सबसे पहली डिवाइस यहाँ पे जो हो सकती है, that can be a router. You need to understand that right here I am talking about the different network communication devices. Communication devices means जिनसे मेरा इंटरनेट लग सकता है, जिनसे मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ. अच्छा बेटा, राउटर का डिस्क्रिप्शन क्या आएगा? Why do I use a router? I use a router because it allows data packets to be sent to a LAN, a local area network. ये भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, allows a local area network to be connected to internet. अगर आपको कोई चीज कोई वर्ड समझ नहीं आए तो मुझे प्लीज स्टॉप कर देना, मैं वहीं पे ही समझा दूंगा. लेकिन यहाँ पे मार्क्स देखो, मार्क्स कितने दिए हुए हैं? 6 दिए हुए हैं. मतलब 1 मार्क इसका मिलेगा, 1 मार्क्स इसका मिलेगा. यहाँ पे मैंने ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा है आपको समझाने के लिए. अगर ये नहीं भी लिखोगी, सिर्फ इतना लिखोगी तो बहुत है. The second device that we can discuss is basically a hub. And what a hub basically do is that it connects computer and devices so data can be broadcast to all devices. या अब हम ये भी लिख सकते हैं कि आसान आसान डिस्क्रिप्शन इसका यहाँ बता देता हूँ, अगर ये मुश्किल लगे तो. इट कैन कनेक्ट कंप्यूटर और डिवाइसेस टू अ नेटवर्क. हब बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जो सारे कंप्यूटर्स को एक साथ एक ही नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करता है. मैं आपको दिखा देता हूँ हब नेटवर्क डिवाइस कैसे होती है. हब नेटवर्क डिवाइस बेटा ये होती है, इसके अंदर होता ये है कि सारे नेटवर्क्स के वायर यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं और फिर आप इस तरह से कनेक्शन बना सकते हो. हर डिवाइस हमारे पास ब्रिज ब्रिज आप आ सकते हो, और ब्रिज यूज होता है दो कनेक्शंस को मिलाने के लिए. कनेक्ट्स टू लोकल एरिया कनेक्शंस ऑफ सेम नेटवर्क. ये भी हो सकता है. दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 3. इसमें कोई सवाल? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास डेटाबेस का है, लेकिन डेटाबेस हमने नहीं पढ़ा अभी, तो ये सवाल हम अभी नहीं करते. ये शायद पढ़ा है, मुझे बताओ. वैलिडेशन चेक, ISBN, ये सब पढ़ा है मैंने. Sir, we did that, but we did not did ISBN.
क्या बेटा? We did this chapter, but I guess मैंने पढ़ाया था ये चैप्टर। one second, sir. अगर नहीं पढ़ाया तो मैं नहीं करता, लेकिन पढ़ाया है तो बताओ, मैं समझा दूंगा तो तुम्हें रिवाइज हो जाएगा। नहीं पढ़ाया आपने सर, वो ठीक है, प्रैक्टिकल्स में P2 में है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ाया है मैंने, फैबलेट कंप्यूटर। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ फैबलेट कंप्यूटर। No sir, you did not. ये बेटा पढ़ाया है मैंने नहीं? चलो वो आगे आ जाएगा। लेकिन मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 तो मैंने अभी रिसेंटली आपको पढ़ाया है। और मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सवाल है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैनी टीचर्स यूजेस मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स इन देयर लेसन, स्टेट टू हेल्थ इश्यूज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर से कौन से ऐसे दो हेल्थ इश्यूज हैं जो हो सकते हैं? तो वी कैन राइट हियर दैट आई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर से आंखें खराब हो सकती हैं। और वी कैन हैव हेडेक एज वेल। एंड दैट्स मोर देन इनफ, बट थर्ड पॉइंट एक्स्ट्रा बता रहा हूँ समझने के लिए, लिखने की जरूरत नहीं है। दैट इज बर्न्स। आवर आई कुड बी बर्न, आवर स्किन कुड बी बर्न विद अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। For the B part says that state two safety issues around with the use of multimedia projector. Need to write here two safety issues associated with the use of multimedia projector. सेफ्टी इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे सेफ्टी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? तो ये भी मैंने हम पढ़ाया था आपको। पहला तो ये हो सकता है कि प्रोजेक्टर फॉलिंग ऑन द प्रेजेंटर। ऐसा ना हो कि प्रेजेंटर के ऊपर ही आपका प्रोजेक्टर गिर जाए। प्रोजेक्टर फॉलिंग ऑन द प्रेजेंटर। एक और जो पॉइंट मैंने पढ़ाया था वो हो सकता है इलेक्ट्रो कुशन, अगर आपको याद हो। इलेक्ट्रो कुशन कॉस्ड बाय लिक्विड स्पिलिंग ऑन द प्रोजेक्टर। इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है, या इलेक्ट्रिकल फायर भी हो सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे लास्ट लेक्चर ही था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 states that a video of a race can be recorded using a camera either on an autonomous flying vehicle drone or in an helicopter. A person would be needed in the helicopter to operate the camera. Describe two advantages and two disadvantages of using an autonomous flying vehicle drone to record the video. Now, in this question, you need to write down two advantages and two disadvantages of using an autonomous vehicles. So, and what is the purpose of that? The purpose of that is that it is being used to record the video of the race. So, for your advantages part, you can definitely write that it is safer to use drones other than risking the humans filming the helicopter. And I can say that it is also cheaper to use drones rather than flying a helicopter। क्योंकि इस सवाल के अंदर हमसे पूछा गया है कि हमें दो एडवांटेज और दो डिसएडवांटेज बताने हैं ऑटोनोमस फ्लाइंग व्हीकल ड्रोन व्हीकल के, टू रिकॉर्ड द रेस ऑफ द वीडियो, एंड अ पर्सन वुड बी नीडेड इन द हेलीकॉप्टर टू ऑपरेट द कैमरा। सो यू नीड टू कंपेयर द बोथ ऑफ देम।
एक वीडियो रेस है, अ वीडियो ऑफ अ रेस कैन बी रिकॉर्डेड यूजिंग अ कैमरा, इधर एक और ड्रोन से हो या हेलीकॉप्टर से हो। तो इन दोनों पॉइंट्स के बारे में तुमने सवाल को लिखना है। तो मैंने एडवांटेजेस में लिखा है कि अगर ड्रोन होगा तो वो सेफर होगा अदर देन यूजिंग द ह्यूमंस और द हेलीकॉप्टर। सेकेंड थिंग ये है कि ड्रोन अगर वो यूज करेगा तो वो चीपर होगा अदर देन फ्लाइंग अ हेलीकॉप्टर। तो इस किस्म के क्वेश्चन के अंदर किसी भी एक पॉइंट को स्पेसिफिक नहीं लिखना है आपने, आपने दोनों पॉइंट्स को कंपेरेटिवली लिखना है। जैसे कि मैंने ये लिखे, दोनों को कंपेयर करते हुए, ड्रोन को भी और हेलीकॉप्टर को। अब सिमिलरली बेटा डिसएडवांटेजेस की बात है, तो डिसएडवांटेजेस में आपके पास क्या है? आई कैन राइट दैट इट इज मोर डिफिकल्ट टू फिक्स कैमरा प्रॉब्लम्स एज नो ह्यूमन इज प्रेजेंट ऑन ड्रोन्स। मतलब ड्रोन्स अगर मैं फ्लाई करता हूँ तो मैं रिमोट कंट्रोल से करता हूँ, मैं उसको कैमरे से कंट्रोल करता हूँ, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। द सेकंड डिसएडवांटेज इज दैट द रेंज ऑफ द ड्रोन में बी स्मॉलर। ड्रोन की जो रेंज है बेटा वो कम हो सकती है, राइट। नाउ फॉर योर क्वेश्चन नंबर 8, it says that state the most appropriate storage medium from its description. We need to discuss the storage medium from its description, and the first storage medium, it says that it is a storage medium that stores the data on the internet। एक ऐसा स्टोरेज मीडियम जो डेटा स्टोर कराएगा इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट के ऊपर बेटा जब भी डेटा स्टोरेज की बात आती है तो इट इज नो अदर देन अ क्लाउड स्टोरेज और गूगल ड्राइव, वो सब क्लाउड के ऊपर जाते हैं। इंटरनल स्टोरेज की बात हो रही है वेयर द करंट इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड। तो ये वाला चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा आपको, दैट इज बेसिकली अ रैम, अ रैंडम एक्सेस मेमोरी में हमारी इंस्ट्रक्शंस आती हैं। अ सॉलिड स्टेट स्टोरेज दैट इज यूज्ड इन द डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा में कौन सा स्टोरेज यूज होता है? हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर हो गया, हमारे पास मेमोरी कार्ड यूज होते हैं। एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम दैट स्टोर्स हाई डेफिनेशन मूवीज। ऑप्टिकल मीडियम स्टोरेज दैट स्टोर्स हाई डेफिनेशन मूवीज। हाई डेफिनेशन मूवीज ऑप्टिकल स्टोरेज में आएगा ब्लू रे, उसके अंदर हमारे पास हाई डेफिनेशन फिल्म्स आती हैं। इसके बाद है वैलिडेशन और वेरिफिकेशन है, मैंने ये पढ़ाया है वैलिडेशन और वेरिफिकेशन। Yes. Okay, perfect. So let's also cover this question. This question is for 6 marks, 6 मार्क्स का सवाल है। और 6 मार्क्स के सवाल के अंदर कहा है कि एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है जो एंटर करा रहा है डेटा फ्रॉम मेडिकल फॉर्म्स इन अ डेटाबेस। Validation and verification are both used in order to minimize the error. Explain why validation and verification are used when they are needed in this scenario। इस सवाल के अंदर बेटा 6 मार्क्स का है, तो 6 मार्क्स का मतलब ये कि आपको सबसे पहले 2 मार्क्स, दो दो पॉइंट्स गौर से सुनना, लिखने होंगे वैलिडेशन के, दो लिखने होंगे तुम्हें वेरिफिकेशन के, 1 2 3 4 और 5 6, और दो तुम्हें लिखने होंगे कि उनकी जरूरत इस सिनेरियो में क्या है। तो इस पेपर को कराने का मकसद ही यही है कि आपको ये समझाना कि इसका आंसर हमें करने कैसे हैं। जैसे 6 मार्क्स का सवाल है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि मेरे पास बेटा वैलिडेशन में क्या होगा। तो वैलिडेशन के अंदर आई कैन राइट दैट वैलिडेशन इज बेसिकली इज एन ऑटोमेटिक computer check that ensures that the
डेटा एंटर्ड इज रीजनेबल और नॉट, वही बुक वाली डेफिनेशन लिखनी है, इज रीजनेबल और नॉट। तो यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स मिलेंगे, एक पॉइंट मिलेगा ऑटोमेटिक कंप्यूटर चेक का, और दूसरा पॉइंट मिलेगा ये इंश्योर करने के लिए कि डेटा एंटर जो है वो रीजनेबल है या नहीं। यहाँ दो पॉइंट्स हो गए। या हम ये भी लिख सकती हो कि इट इज यूज टू चेक दैट इफ इट फिट्स द क्राइटेरिया और नॉट। वैलिडेशन के बाद अगर मैं वेरिफिकेशन की बात करता हूँ, तो वेरिफिकेशन चेक्स दैट, वही किताबिक डेफिनेशन, चेक दैट द डेटा ऑन द ओरिजिनल सोर्स डॉक्यूमेंट इज सेम टू द डेटा यू एंटर्ड इनटू द सिस्टम, कि डेटा जो है वो सेम हो हमारा। या ये भी लिख सकते हैं कि मेकिंग श्योर दैट द डेटा इज एक्यूरेटली कॉपीड और नॉट। ये आ गए वेरिफिकेशन का पॉइंट। और अब मैं लास्ट के अंदर दो या तीन पॉइंट्स मुझे और चाहिए पूरे 6 मार्क्स के लिए। तो वैलिडेशन इसलिए होता है, वेरिफिकेशन इसलिए होता है, और व्हाई डू आई नीड दैट नाउ? फॉर दिस आई कैन राइट दैट दे आर नीडेड। दोनों की बात हो रही है, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन की। बिकॉज इट इज पर्सनल डेटा एंड इट हैज टू बी करेक्ट। ये पहला पॉइंट आ गया। एक और पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि डेटा शुड बी फ्री फ्रॉम एनी एरर्स। ये भी लिख सकते हैं कि इफ डेटा इज रॉन्ग इट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व इट। इस तरह से आपको पूरे 6 के 6 मार्क्स मिलेंगे। तो पेपर के अंदर जरूरी है कि मार्क्स को देखते हुए हम सॉल्व करें, वरना हमें सबके प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसमें कोई सवाल? Now we have the next question, that is question number 10. Question number 10 is very interesting, जो मैंने आपको पढ़ाया है, 11 भी पढ़ाया है। चलो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 says that the manager of the Tawara Hotel has decided to computerize the hotel room booking system. The new booking सर system will क्लास allow। एंड होने वाली है, मीटिंग इज गोइंग टू एंड। कुछ कह रही हो बेटा? मैं सर कह रही हूँ कि मीटिंग एंड होने वाली है। अच्छा अच्छा। विल यू रिस्टार्ट और
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अगली क्लास में स्टार्ट कर लूंगा। ठीक है, नो इशूज। आई एम सेंडिंग यू दिस एज अ कॉपी। तो ये आप फिर अपने पास घर पे ये सॉल्व करके मुझे भेजना। बाकी अगली क्लास में मैं फिर क्वेश्चन 10 से शुरू कर दूंगा।